who are connected with us right now. So first of all, yes, we are late today, just for today only. It's because not our problem. It's something we are going to have issues with our platform teams for 10 to 20 minutes. So I don't want to get interrupted between the meeting. So that is why I've moved it to 9 p.m. Anyway, so neural networks from scratch. What we're gonna do here? कल हमने परसों हमने neural networks बनाए या जब फर्स्ट टाइम हमने बनाया जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड किया था न्यूरल नेटवर्क्स का एंड देन वी just saw neural networks in action in linear regression and multiple linear regression. But before moving towards classification, uh, one of my senior AI engineer recommended me to perform neural networks from scratch, and yeah, that is very important because they told me that starting deep learning from now will not gonna help you guys, but understanding neural networks from the core intuition will gonna help to kickstart in deep learning in future. I said okay, yes, I'm gonna perform my neural networks on scratch. तो आज हम basically कुछ assume हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे कि भाई ताकि आपको पता चले कि अंदर न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोग्रामिंग क्या हो रही होती है. I have uploaded this file from here so you can see, or there may be many students who currently not available because of urgent timing change, but don't worry, who have already RSVP today's session has got marked their attendance. ठीक है ना. आप live हैं तो इसलिए हैं because if you in case you need to ask any Q&A. So that is why आज क्योंकि मैं देख रहा हूँ there are only 500 students today. So right, no issue. Going back towards getting started with TensorFlow now. Intro to neural networks. तो यहाँ पे अगर हम देखें, let me just reload it. Taking time. चलो जब तक reload होती है तब तक हम अपनी यहाँ पे जाते हैं. क्या GitHub is sick right now. ओके, तो ये थी हमारे कुछ ऑलरेडी ये थी हमारी कुछ लेयर. हम बड़ी आसानी से यहाँ पे एक लेयर बना देते हैं by using TensorFlow. Same can be performed with PyTorch as well. So it's very pretty easy. But what is running behind it? Before TensorFlow and PyTorch, how people perform neural networks and how neural networks have been so much daunting before ages. देखें, अगर आप चाहें तो न्यूरल नेटवर्क स्क्रैच से भी बना सकते हैं, बट हर दफ़ा आप स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने लगेंगे सो इट गोना टेक टाइम and can mess up your coding. So what they done, they started to make a neural network and then they implement all networks in a function. They start making the classes of those neural network and they call whenever they need. So at the same time, Keras came with the very first solution. They just provided a generalized, no, not sorry, Keras, Apache which own many frameworks. So वो आए थे इस initiative के साथ that they introduced their first framework in which you can use neural network just by importing their library. Then there was some libraries with .NET 3.5 and there were some things related to Java as well by Oracle. Again, as soon as Python taken action in the real world, so Keras was the first to provide these kind of frameworks. Then PyTorch, then TensorFlow was built on C++, and then TensorFlow acquired Keras. So it's a long story कि हम framework की मदद से अब neural network develop कर रहे होते हैं. So आज हम देखेंगे that what or how neural networks are working at the back. तो ये पहले हम start करेंगे basic से, then we gonna increase our layers, and then we gonna make it like a production level layers. Don't worry, it will be very simple and we're gonna end before 10 p.m. inshallah easily. All right, so I have already told you. So we already know the equation of neural networks, which is what is the equation of neural network very easily if you want to say. So it's y is equal to weight 1 into x1 plus weight 2 into x2 plus weight 3 into x3 until it goes to the nth number of weight 9 into x9 plus bias. तो ये हमारी एक इक्वेशन होती है जो कि एक सिंपल एक न्यूरॉन टू न्यूरॉन की लेयर के दरम्यान, जिसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी ओपन द न्यूरल नेटवर्क. Why it's switch to wallpaper. All right, okay, let me show you neural network. तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके,
So you can see, oh, huge picture. So you can see here, यहाँ पे हमारे पास वेट 1 आ रहा है, वेट 2 आ रहा है. So ये तो खैर उन्होंने सबको एक जमा करके बेसिकली एक तो तरह का बायस बन गया ये तो. This is not a good example, I guess. This will be the good example. All right. तो ये हमारी एक इनपुट लेयर थी, इसके अंदर 3 हिडन लेयर्स है फॉर एग्जांपल और एक आउटपुट लेयर है. अब इनपुट हमारे पास इस साइड से आ रहा है. ऑलराइट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस चीज से आने के बाद H1 से पहले डाटा किस ट्रांसफॉर्मेशन में होके जा रहा है, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये होती है. until unless we are not applying our own equation we are having the same equation. ठीक है, हम एक्टिवेशन फंक्शन नहीं अप्लाई कर रहे होते तो हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होती, तो इनपुट से जो हमारी इक्वेशन आती है वो यही आती है. So in that case we are having this scenario. फॉर एग्जाम्पल हमने एक इनपुट लेयर बना ली. सो दिस इज एन इनपुट लेयर. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक इनपुट लेयर होती है. जैसे हमने यहाँ पे इस पे 3 न्यूरॉन्स ले लिए. सो वी आर हैविंग 3 वैल्यूज हियर. ऑलराइट, 1 2 3 यू कैन सी. सो दिस इज एन इनपुट लेयर विथ 3 यूनिट्स ऑफ न्यूरॉन्स. सो हमारे पास इनपुट लेयर है, 3 इनपुट से हमारे पास 3 नंबर्स, कोई मैग्नीट्यूड कुछ भी है उन 3 न्यूरॉन से पास हो रहे हैं. And then we are having weights. Now, what is weight is telling us? Weight is telling us this magnitude of this vector, the magnitude, the matrix of this vector. इस लेयर से पहले पहले जो हमारे पास वेक्टर बन रहा है, जो सिक्वेंशियली लेयर्स बन रही हैं, ठीक है ना, ये उस लेयर की इक्वेशन है. लेयर की नहीं, लेयर के दरमियान जो लिंकेज है, जो कनेक्शन है, जो पैरामीटर है हमारे पास, ये उसकी इक्वेशन है. नाउ वेयर वी गो. ऑल राइट. तो हमारे पास ये इसकी है. अभी हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट लेयर है. इनपुट लेयर के बाद हमने हमारे पास एक ही बायस है. अब इस बायस से हमें पता चल रहा है बायस कहाँ का होता है. बायस एक पर्टिकुलर लेयर का नहीं होता, बायस 2 लेयर के दरमियान का होता है. ठीक है. अभी अगर आपको अगर याद नहीं भी रहा सो डोंट वरी, हम ये सब ऐसे देख चुके हैं पहले तो. लेकिन अगर मैं आपको लेके जाऊँ बैक प्रोपगेशन पे, आई एम ट्राइंग टू रिवाइज सम थिंग्स वी हैव लर्न on the yesterday basis. Now again we have to wait for GitHub. All right, तो यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं. So we are having input from here, input from here, and this is the weights of our vectors. जो हमारे पास एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है. और बायस यहाँ इन बीच में तमाम जितनी भी हमारे पास लिंकेज होंगी, वेट्स होंगे उनके साथ, ये हमारे पास पर्टिकुलर बायस अवेलेबल है. बायस किसी पर्टिकुलर लेयर के लिए अवेलेबल नहीं होता, लेकिन 2 लेयर के दरमियान जो लिंकेजेस होते हैं उनके लिए हमारे पास, उस इक्वेशन के लिए हमारे पास बायस अवेलेबल होता है. So we already performed this equation W1 x1 plus W1 x2 plus B1. So we are just trying to perform the same thing in our code. अब यहाँ पे हम कोड में परफॉर्म करेंगे and how we gonna do that. So these are our inputs which is x. ठीक है, इसको आप x भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पे इनपुट के नाम से ले लिया, एक ही बात है. तो these are our x and these are our input as well and these are our weights. आपकी मर्जी, आप इसको x w करके अपने लगा दिएगा गिटहब पे. So there will not be any copyright issue as well. यहाँ हमारे पास inputs आ गए, यहाँ हमारे पास उसके weights और bias आ गया. And then we are going to implementing that equation in code which is obviously not so hard. ठीक है ना. अब कैसे हो रहा है वो, हमने पहले इस यूज किया इनिशियल, मतलब x1 इंटू W1. अब यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हमारे पास ये इंडेक्स तो 0 ही चलेगा ना. हमारे पास फर्स्ट हो सेकंड हो, उससे स्टार्ट करें किससे भी करें, यहाँ पे तो एक कम हमारे पास 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है. हमारे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. अब ये हमारे पास इंडेक्स 0 है, ये हमारे पास इंडेक्स 1 है और ये हमारे पास इंडेक्स 2 है. So here we are having 0 1 2 in the same manner. अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट सेम पर्टिकुलर वेट से मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस हो रहा है. फिर इसका ये वाला इनपुट इसी वेट से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहा है और फिर सेकंड का इनपुट इसी वेट से मल्टीप्लाई होकर प्लस होकर किस क्या प्लस हो रहा है, हमारे पास बायस प्लस हो रहा है. और आप यहाँ पे देखो, इस जो कहाँ पे हमने खोली हुई थी, हाँ ये बायस जो है हमारे पास एट द एंड बायस ही ऐड होता है जो हमारे पास गिवन बायस हो. अभी हम चल रहे हैं एज्यूम वैल्यूज पे, हमारे पास कहीं से भी वैल्यूज नहीं आई हैं. ऑल राइट.
यस, हमने इसमें अपनी तरफ से इनपुट और वेट और बायस दे रहे हैं अभी। अभी हम कोई रैंडमली जनरेट नहीं कर रहे, हम समझने के लिए कर रहे हैं हमारे पास। अभी हम रैंडम आगे जाकर देखेंगे रैंडम कैसे होता है, अभी हम रैंडम नहीं कर रहे। ओके, आर एक्स वैल्यूज एंड न्यूरॉन सेम? ओके, या काइंड ऑफ देखें, अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो कि इधर हमारे पास तीन एक्स हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें तीन न्यूरॉन्स हैं, लेकिन आगे जाके हमारे पास तीन वेट्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे एक वेट और डाल दूंगा ना, तो मतलब हिडन लेयर के अंदर भी हमारे पास क्या है, तीन न्यूरॉन है। तो उनकी वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं इसके आगे एक वेट और डाल दूंगा, तो वो क्या होगा, वो अगली वाली अ, उसका वेट बनेगा, अगली वाली लेयर का वेट बनेगा। तो उन दो वेट के दरम्यान भी तो एक वो होगी ना, लेयर होगी। तो वो लेयर किस पे डिपेंडेंट होगी, उसके आगे वाले नंबर ऑफ वेट्स पे। वो खैर आगे जाकर देखते हैं हम। तो ये सारी वैल्यूज अभी हमारी एज्यूम्ड है। और अभी इसको मैं आपको इक्वेशन से इसको रिलेट करके दिखाऊंगा, दैट हाउ कैन वी रिलेट द गिवन इक्वेशन with their input and output. Okay. All right. Let me open another example if maybe I am having in my system. Let me see that. Okay. No, I'm not having. Okay. Okay. Someone has asked that should we call bias as y-intercept? No, y-intercept is actually the weight. Y-intercept slope होता है ना. So bias is a constant. Bias is not a y-intercept. All right. सो नाउ अगेन, तो हमारे पास अब W1, अब मुझे किसी ने कहा कि इक्वेशन को रिलेट करके बताया। मैं आपको अब रिलेट करके बता रहा हूँ। ये हमारे पास इनपुट की तीन वैल्यूज थी, 1.2, 5.1, 2.1। ये हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये हम अब x1, x2 और x3 की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास तीन वेट भी हैं, 3.1, 2.8 एंड 8.7। हमारे पास तीन वेट की वैल्यूज भी आ गई, W1, W2, W3। अब हमारे पास तीन ही वेट, तीन ही इनपुट है, तो हम आगे नहीं जा रहे। एंड देन वी आर प्लसिंग बायस, ठीक है। हमारे पास बायस की क्या वैल्यू है, 3.0 है। एंड सेम वी हैव डन हियर एज वेल। पहला इनपुट लिया है वेट के साथ, दूसरा इनपुट वेट के साथ, तीसरा इनपुट वेट के साथ, एंड देन वी आर एडिंग बायस. Now what we're gonna do, we're gonna print this, by printing this we getting to know that what output layer this will generate. क्या हो रहा है यहाँ पे सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास 35.7 आ रहा है। तो ये किस तरीके से आ रहा है, हमारे पास जो वेक्टर, जो तीन न्यूरॉन्स हमारे पास, जो हम इनपुट ले रहे हैं और फिर तीन वेट से भी इनपुट आ रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर एक ही रिजल्ट जनरेट कर रहा है। हमने यहाँ पे एक ही लेयर बना रखी है आउटपुट उसकी। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीपल लेयर बनाएंगे तो मल्टीपल लेयर बन जाएगी आउटपुट की। हमने लेकिन यहाँ पे एक लेयर बना रखी है। अब आप बोलेंगे कि भाई मल्टीपल आउटपुट लेयर कैसे बनती है, तो आगे जाकर देख लेंगे आपकी मल्टीपल आउटपुट किस तरह बनती है। इस तरीके से आपको ये भी समझ में आएगा कि न्यूरल आर्किटेक्चर किस बेस पे हमें बनाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से इनपुट पांच आ रही है, आउटपुट 100 रख दी हमने बिला वजह। सो मॉडल विल गोइंग टू बी कंफ्यूज एंड मे बी एक्सप्लोर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सो एनीवेज, तो यहाँ पे हमने फिलहाल एक ही लेयर रखी हुई है, तो हमारे पास एक ही आउटपुट आएगा। मतलब हमारे पास एक तरीके से एक मतलब लेयर के अंदर एक ही न्यूरॉन है हमारे पास, एक तरीके से उस न्यूरॉन की वैल्यू जो हमारे पास वो यहाँ से कैलकुलेट हो रही है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 35.7 वैल्यू आ रही है हमारे पास। दिस इज ऑल जस्ट हार्ड कोडेड, इसमें कुछ भी वो नहीं है। मतलब वो क्या कह सकते हैं आप, लाइक बाय रैंडम नहीं आ रही। लेट मी सी वन मोर थिंग. Okay, someone has asked a question. I didn't understand that. All right, where did I have mentioned W2 into X2? Uh, Let me see, W2 into X2. Where did I have mentioned this? This is W2 and X2, right? This is not multipliers, this is X. And where I have mentioned, brother, you have asked me that why W1 into X2. Can you please let me know where I have mentioned this? नो, बायस हर न्यूरॉन का अलग नहीं होता। ओके,
यहाँ पे इस इक्वेशन पे इसका मतलब है आप लोगों की अभी तक कोर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है। ऑल राइट, सो देखें, एक लेयर में हमारे पास अगर मल्टीपल लेयर्स है ना, बायस उसका सेम ही रहता है। बायस नहीं चेंज होता, वेट हमारे पास उसके एडजस्ट होता है। ठीक है, बायस एक पूरे पोर्शन का सेम रहेगा। फिर उसके बाद अगर जब आउटपुट जा रहा होगा तो बायस उस पूरे का सेम रहेगा, बस यहाँ के आउटपुट हमारे पास चेंज होने होंगे। अंडरस्टूड? ऑल राइट। What are the parameters that tell us to switch from machine learning to neural network? All right, good question. I will explain this in very detail at the end of class. Good question, good suggestion. Let me pin this up. Or maybe you are right. M is the slope and B is the y-intercept. I'll see that. But please, I don't know who have told me that W1 and X2, why not W2 into X2? I don't know where I have mentioned this. अच्छा, आप यहाँ की बात कर रहे हो, ये असल में आपको अगर आपने पुरानी क्लास अटेंड करी हो तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, एंड एवरी वन अदर नोज इट। अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी कोई गलती ही नहीं है, यहाँ पे W2 into X2 ही है। ये तो मैं पुरानी क्लास का निकाल रहा हूँ एक ब्रेक प्रोपगेशन की एग्जांपल। आप इस नीचे इक्वेशंस को मत देखें, आप बस इसको समझें, ठीक है, जिसको देख के मैं समझा रहा हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी एक इनपुट लेयर बनाई थी और उसका एक सिंगल सिंगल न्यूरॉन आउटपुट जनरेट किया है। एंड नाउ वी आर गेटिंग 35.7 वैल्यूज ऑन आवर हार्ड कोडेड वेट्स एंड बायस। ठीक है, हमारी अज्यूम वैल्यूज थी। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना क्रिएट अ सिंपल लेयर ऑफ न्यूरॉन्स with 4 inputs and 3, all right, no, this is wrong, with 4 neurons, with 4 neurons in input and 3 hidden layers. No, these are 2 hidden layers. All right, जल्दी में ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 hidden layers हैं, और आई गेस एंड यस, हमारे पास 2 hidden layers हैं और हमारे पास 4 neurons हैं इनपुट के अंदर। हाउ वी गोना सी दिस, हमारे पास सिंपल से अंदाजा हो रहा है, वी आर हैविंग 4 वैल्यूज 1 2 3 2.5। अब एक एक वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन से आ रही है। ठीक है, अब एक सवाल है, आई डोंट नो किसका है, वाई बायस रिमेन सेम? बायस रिमेन सेम फॉर द स्पेसिफिक पार्ट, बायस चेंज हो सकता है, देयर इज एन स्पेसिफिक एल्गोरिथम फॉर दैट व्हिच आई एम गोना एक्सप्लेन इट लेटर। तो बायस चेंज होता है एडजस्टमेंट के वक्त। अब यही यही तो प्रॉब्लम है बैक प्रोपगेशन के साथ। बैक प्रोपगेशन आज भी आप किसी अच्छे इंजीनियर से बोलोगे ना, वो बोलेगा कि बैक प्रोपगेशन की टेक्निक आज भी यूज हो रही है हमारे न्यूरल नेटवर्क में, जो कि सबसे बेकार है, जो कि हमारा दिमाग एक्चुअल में बैक प्रोपगेशन की तरह वेट एडजस्ट नहीं कर रहा होता वाइल ट्रेनिंग। अगर बैक प्रोपगेशन की ही टेक्निक के ऊपर अगर हमारा दिमाग ट्रेन होने लग जाए तो वो तो इतना टाइम ले लेगा कि इतने में तो हम सोचने में बहुत टाइम लगा दें। तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है कि यहाँ पे बायस बहुत तेजी से जनरेट कैलकुलेट नहीं होते जितनी तेजी से वेट एडजस्ट हो रहे होते हैं, एंड समटाइम्स वी गॉट प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन कुछ इसके भी एल्गोरिथम्स हैं व्हिच हैव एड्रेस्ड दिस प्रॉब्लम, लेकिन बट स्टिल बैक प्रोपगेशन इज नॉट द एंड solution in neural network. There may be the upcoming algorithm which gonna deal in neural networks। अगर हमारे पास वो algorithm आ गया जिस तरीके से इंसान सोच रहे हैं, the perfect algorithm, so then no one can stop releasing artificial general intelligence। ठीक है, artificial general intelligence के बारे में आपको सबको मालूम ही होगा। तभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इसीलिए ही रुके हुए हैं। लाइक यू मे हैव वॉच मूवीज ऑफ टोनी स्टार्क, सॉरी आयरन मैन, तो आपने उसमें जारविस देखा होगा। सो दैट वाज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड दैट कांसेप्ट इज एक्सेप्शनली ट्रू। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बट वी स्टिल आर इन सर्च ऑफ दोज एल्गोरिथम्स which can make those things possible. Those things are absolutely possible. Even though with the back propagation techniques, these things can are made possible at such extinct level. Sophia robot is the biggest example, but it can improve 1,000 times better if we get some better algorithms in the future, inshallah. सो एनीवेज, हम बात करते करते कहीं और निकल गए। यहाँ पे हमारे पास इनपुट में 1 2 3 2.5 हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही थी। हमारे पास यहाँ पे वेट्स के अंदर 0.2 0.8 0.5, इधर भी 4 वैल्यूज, इधर भी 4 वैल्यूज, इधर भी 4 वैल्यूज। अब यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, हमारे पास इनपुट लेयर से 4 वैल्यूज आ रही हैं, एंड देन वी आर हैविंग वेट 1 वेट 2 वेट 3, हमारे पास 0.2 0.8 0.5 10। ठीक है, ये वेट है। अब ये आपने देखा होगा कि मैंने इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, इन दो लाइंस के बीच में मैंने कमेंट डाला हुआ है, हिडन लेयर 1 विथ 4 यूनिट्स ऑफ न्यूरॉन। अब इनपुट लेयर आई है 4 न्यूरॉन के साथ, और उसके उसके अंदर 4 डिफरेंट वेट्स भी थे, और फिर वो 4 डिफरेंट मजीद
एक लेयर में जा रही होगी। अब वो लेयर कहाँ है, यहाँ पे आपको लेयर नजर नहीं आ रही होगी इत्तेफाक से। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लेयर इस तरह फॉर्म में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अभी हम बेसिक कोडिंग कर रहे हैं, अभी आगे जाके एडवांस करेंगे। हमारे पास हो क्या रहा है, दिस इज हिडन लेयर 1 विथ 4 यूनिट्स ऑन न्यूरॉन। हम यहाँ पे क्या करेगा, हमारा मॉडल जो होगा वो इन सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा और इन सब के आउटपुट निकाल देगा एक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू। और जब हमारे पास उसके आउटपुट आ जाएगा फिर वो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देगा। तो आउटपुट आने से पहले जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज होंगी ना, वो वैल्यूज होंगी जो हमारे पास बेसिकली एक हिडन लेयर प्रोड्यूस कर रहा होगा। देन सेम विल गोना हैपन हियर एज वेल, कि हमारे पास सेकंड हिडन लेयर होगी, इधर जो होगी हमारे पास यहाँ तक की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी होंगी बाय यूजिंग द लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, एंड देन दिस हिडन लेयर 2 विल गोना आउटपुट द न्यू रिजल्ट्स। और कैसे न्यू रिजल्ट आउटपुट कर रहा होगा, हाउ इट गोना जनरेट बाय यूजिंग द सेम लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। और उसके बाद फिर हमारे पास ये जो होंगे वेट्स यूज हो रहे होंगे, एंड देन दिस विल एक्सटेंड टू अवर आउटपुट लेयर। आई एम 100% श्योर कि ये आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ बायस? गुड क्वेश्चन। बायस कई दफा बता चुका हूँ कि अगर आपको याद हो कि अगर इक्वेशन हमेशा इस तरह होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमेशा इस तरह हमारी इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास c जो होता है वो बायस होता है, जो कि कांस्टेंट कहलाता है। यस, समवन वाज राइट, दिस कॉल्ड इंटरसेप्ट, आई वाज रॉन्ग दैट टाइम। सो बायस इज नोन एज y इंटरसेप्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट एंड m इज स्लोप व्हिच इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विद द x। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कह लें या वेट कह लें, some kind of same, not everything is same, some kind of same. Correlation coefficient is used to change the values of slope, and slope is different by the way. All right. Now let's just get back to this. यहाँ पे हम आ गए मूविंग टू आउटपुट लेयर। अब हमारे पास क्योंकि दो हिडन लेयर थी और एक आउटपुट लेयर थी, तो मतलब इनपुट लेयर हमारे पास ही आ गई, एक हिडन लेयर आ गई, एक हिडन लेयर 2 आ गई और एक आउटपुट लेयर आ गई। तो मतलब बीच में कितना गैप है हमारे पास, एक है, दो है और तीन है। एक इनपुट से हिडन लेयर के दरमियान, एक हिडन से दूसरी हिडन लेयर के दरमियान, और एक दूसरी हिडन लेयर से आउटपुट लेयर के दरमियान। इसके दरमियान के वेट्स भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एक तरह का मैं आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो गौर से समझिएगा। देन व्हाट आई एम टेलिंग यू के इन ना सिर्फ वेट्स है हमारे पास, इसके साथ साथ हमारे पास तीन वेट्स बायस भी हैं। ठीक है, इधर हमारे पास जो होगा बायस 1 यूज हो रहा होगा। ठीक है, बायस 1 यूज हो रहा होगा, बायस 1 विल बी यूज है। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस। और यहाँ पे हमारे पास बायस 2 यूज हो रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास बायस 3 यूज हो रहा होगा। एंड वेयर आर दीज वैल्यूज, वी हैव गिवन दीज वैल्यूज हियर। क्योंकि हम हार्ड कोडिंग कर रहे हैं तो हम कहीं भी ओपन से वैल्यूज देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास बेसिकली इनपुट लेयर से लेकर आउटपुट लेयर तक का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ डेवलप हो गया ना। व्हाट विल बी द रिजल्ट्स वी गोना गेट? तो हमारे पास एक आउटपुट लेयर है। अब आउटपुट लेयर सिंपली रिलाई कर रही है इस वक्त, क्योंकि हम लोग उतना एडवांस में भी नहीं जा रहे हैं। आउटपुट लेयर की जो न्यूरॉन्स हैं वो सिंपली रिलाई कर रहे हैं कि उसके पास डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा किसी को बोलते हैं, जब व्हेन वी मल्टीप्लाई two vectors, so it resultant we got scalar values, okay, you can say magnitude values, which is also known as dot product, लेकिन वो एक फिर भी वो एक पर्टिकुलर वेक्टर में होती है। ऑल राइट, इनपुट्स, ओके, इनपुट्स वेट। अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, बेसिकली मैग्नीट्यूड टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बट आर वेक्टर्स विल नॉट चेंज। वेक्टर्स का साइज हमारे पास वही रहता है, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड। वो सिनेरियो अलग है, अगर आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हो या ए लेवल्स में लेवल्स में पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा। सो बेसिकली दिस इज वी आर परफॉर्मिंग हियर डॉट प्रोडक्ट, जो कि आगे जाके हम numpy की लाइब्रेरी से भी यूज करेंगे। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आया 0। अब हमारे पास ये, अब अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप गौर से देखना। ये हमारे पास इनपुट था x, ठीक है, हमारे पास x यहाँ पे एक इनपुट था। ये मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेट से, जो कि हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन लेयर से फर्स्ट हिडन लेयर से हमारे पास पहले पहले जो वेट्स थे उनसे मल्टीप्लाई हुआ। तो ये दिस गोना रिजल्ट इन, ये अब जो इक्वेशन बन रही है ना, ये वो इक्वेशन बन रही है जो एक न्यूरॉन जो होगा जो एक हिडन लेयर होगी वो एक्सेप्ट कर रही होगी, जो कि परफॉर्म कर रही होगी इस पर।
हमारे पास तो ये वाइट वेट्स मौजूद हैं। हिडन लेयर क्या करती है? बेसिकली हिडन लेयर ही यही काम कर रही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। आप चाहो तो इस सबको उठा के, लाइक इस पूरे की पूरी लाइन को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, बोल देते कि भाई ये रही हिडन लेयर, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3 का नाम दे देते हैं। एंड देन यू कैन मेंशन हियर एज वेल कि भाई यहाँ पे हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3। इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये हमारी वही तीन लेयर्स थी जो परफॉर्म हुई उसी तीन इक्वेशन के साथ। हम तीनों बायस साथ, बायस हमारे डिफरेंट रहे यहाँ पे, वेट्स की जस्ट डिफरेंट थी, इनपुट्स हमारे सेम ही थे। एंड देन वी व्हेन सी दी आउटपुट, तो हमारे पास तीन वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, 4.8, 1.21, 2.385। मतलब हमारे पास आउटपुट लेयर के अंदर आफ्टर डॉट प्रोडक्ट वी आर हैविंग 3 न्यूरॉन्स। I hope this makes some sense. If this is not making some sense, so I'm gonna re-continue this with some another fashion. अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को दोबारा लिख रहा हूँ। You have to see this again. Now with some different fashion. मेरे दिमाग में अभी भी आया कि इस तरह भी मैं लिख के समझा सकता हूँ। ऑल राइट, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट लेयर थी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यार कि यार क्या ना मिक्स मैसअप क्रिएट हो रहा है, दैट विद इन टू बायस वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज हिडन लेयर। वी आर नॉट एक्चुअली अज्यूमिंग, वी आर ऑब्वियस की बात है, हमारे पास हिडन लेयर है, दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन। अब किस तरह हमारे पास हिडन लेयर है? अब नाउ यू ऑलरेडी नो गाइस कि हिडन लेयर कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रही होती है, मतलब कोई ना कोई इसका एक्टिवेशन फंक्शन होता है, और वही एक्टिवेशन फंक्शन हमने आखिर में डाल दिया था। नाउ लेट्स सी कि इसका एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। ओ लेट मी डू इट अगेन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम क्या नाम दे देंगे? हिडन लेयर, मैंने स्पेस भी दे दिया, हिडन लेयर 1। तो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा नाम दे दिया। या आप इसको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे H1 नाम दे दें ताकि पूरी स्क्रीन पे आ जाए आराम से। यहाँ पे हमने H1 नाम दे दिया है। नाउ व्हाट वी गोना डू हियर, हम आपको यहाँ पे अब ऑलरेडी मालूम है दैट दिस इज अ हिडन लेयर आफ्टर फर्स्ट वेट्स। इसको मैं कमेंट्स को यहाँ लेके जा रहा हूँ ताकि खूबसूरती मेंटेन रहे। ओके, देन व्हाट आई एम गोना डू हियर, आई एम गोना कॉपी दिस। All right, I have copied this and now I'm gonna paste it here. Okay, and we're gonna assign these values into H2, which H2 is our hidden layer, second hidden layer. And then what we're gonna do here, अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास लास्ट लेयर है, तो ये हमारी आउटपुट लेयर ही कहलाएगी। हिडन लेयर का मतलब ये नहीं होता कि वो लेयर छुपी हुई, हिडन लेयर का मतलब है कि जो लेयर इनपुट और आउटपुट के दरम्यान है वो हिडन लेयर कहलाती हैं। ऑलराइट, तो मूविंग टू आवर आउटपुट लेयर, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे, यहाँ पे मैं ज़रा गैप दे दूँ ये ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज गाइस, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम दे देंगे आउट लेयर, या फिर ओ दे दिया हमने, सही है। तो ये दिमाग में रखिएगा अपने, दैट ओ इज आउटपुट लेयर। ठीक है, हमारे पास ये अब आउटपुट लेयर के अंदर जो वैल्यूज अब हमारे पास आउटपुट लेयर के अंदर आएंगी वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रही होंगी। अब हमारे पास जितनी भी तीन वैल्यूज हिडन इसमें से आ रही हैं, हमें उनको वेक्टर में असाइन करना होगा। जो हमारे पास वैल्यूज बनती जा रही हैं, आगे चलती जा रही हैं। सो व्हाट वी गोना डू सिंपली हियर, वी गोना राइट H1 and here we gonna write H2 and here we gonna write H3। तो ये बेसिकली हमारे पास वही H1 H2 जो हमने ऊपर सॉल्व कर दिया। हम यहाँ पे हिडन लाइन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। मैं कोडिंग को एकदम जैसे मर्जी कभी समझाने के लिए कर सकता था, तो मैंने अब हिडन लेयर उसकी एक्चुअल जगह पे पहुंचा दी है। जिस तरीके से आप लोग डायग्राम में देखते हो कि पहले इनपुट लेयर आए, इनपुट लेयर थी, फिर 4 न्यूरॉन्स थे, उसको 4 वेट भी मिले, ऑफ कोर्स ही बात है। उन 4 वेट मिलने पे फिर उसने वो गया एक हिडन लेयर के अंदर, हिडन लेयर के अंदर वो सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हुई। फिर वहां से वो आउटपुट गया इधर, इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर। तो ये था वो सारा सिनेरियो जो हम परफॉर्म कर रहे थे। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास कहाँ गए वो बैक प्रोपगेशन वाली एग्जांपल, ये हमारी एक एग्जांपल थी फॉर व्हाट वी वर सॉल्विंग दिस, ठीक है।
अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम एज्यूम सब सारी इसको नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इनपुट आ रहे हैं उसकी बस फर्स्ट लाइन देख रहे हैं। मतलब फर्स्ट हिडन लेयर का पहला न्यूरॉन से आउटपुट गया, सेकंड हिडन लेयर का पहले आउटपुट से आउटपुट गया और आउटपुट से निकल गया। हम सबको सॉल्व करने लग जाएंगे, सो इट गोना टेक डे। तो हम सब, जैसे हमने यहाँ पे एक एक सॉल्व करके बताया था कि किस तरह काम कर रहा होता, तो वैसे भी हम यहाँ पे एक एक सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे ये काम कर रहा होता है। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था मुझसे कि व्हाई वी आर सॉल्विंग दिस वन टाइम, व्हाई फॉर नॉट एवरी ईच न्यूरॉन। क्योंकि ये जो है ना, सिर्फ एक न्यूरॉन बन रहा है। वी शुड हैव मल्टीपल न्यूरॉन्स इन दिस, बट वी आर नॉट हैविंग इट, मींस कि हम सब एक ही न्यूरॉन पर भी काम चला रहे हैं, जस्ट फॉर अ बेसिक इंटुइशन। सो वी हैव सीन दिस एज फार एज वी कैन सी इट। तो ये भी वही आउटपुट जनरेट करने वाला है। अब इसने एरर दिए। लेट मी सी, H3 is not defined. Oh yeah, why it's going to be H3, it's going to be O. All right, so we got the same value. So any question in this? Yes, hidden layer में भी 4 न्यूरॉन्स हो गए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो है ना, हम 4 न्यूरॉन्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी एक न्यूरॉन पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दिस एंटायर इक्वेशन सॉल्व्स अप लाइक अ वन न्यूरॉन। ये मैं आपको बैक प्रोपगेशन में समझा चुका हूँ। अगर अभी अब समझ में आया और आपने बैक प्रोपगेशन अटेंड नहीं किया था, तो अब जाकर दोबारा जाके बैक प्रोपगेशन यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। देन यू गोना अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक न्यूरॉन की इक्वेशन चेंज हो जाती है, और दैट इज द रीजन कि हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर जो होते हैं बढ़ जाते हैं। सो वी गॉट द सेम वैल्यू, बस हमने पोजीशन चेंज की थी, हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई हैं। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना सिंपलीफाई और यू कैन से कोडिंग। यहाँ पे हमने सारा मैनुअली काम किया था, हमने बिल्कुल रॉ पाइथन पे काम किया। हमारी वर्कशॉप देखा जाए तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एडवांस लेके चलें। अब एडवांस के लेके जाने से पहले पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी अपने लिए आसानियाँ अपना रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस तरीके से न्यूरॉन्स बनाने लग जाएंगे, सो इट गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, एंड यू कैन से आल्सो दिस लाइक व्हाई द हेल वी आर नॉट यूजिंग फोर लूप। हम यहाँ फोर लूप लगा देते, यस दे कैन बी मल्टीपल फोर लूप्स फॉर मल्टीपल इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर, एंड वी कैन मेक फंक्शंस एंड क्लासेस. We can make so many things for the entire production development. We can use NumPy random to assume all values in a random manner. We can use random.c to just make the input values constant. बहुत सारी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो हम सारी का एक एक टेस्ट ले लेंगे। सारी तो परफॉर्म नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। सो हेयर वी आर हैविंग import numpy as np. दीज आर द सेम वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ थी वही सेम वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं। हम क्या कर रहे हैं अब, दैट इन द पास्ट वी डिड वेट्स 1, वेट्स 2, वेट्स 3। हमने तीन एक अलग अलग लिस्ट बनाई थी। नाउ वी आर ऑल समराइजिंग इन वन लिस्ट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी हैव मेक अ लिस्ट ऑफ शेप 4 by 2, आई गेस 4 by 2 बनेगी ना ये, रोज इनटू कॉलम्स, या 4 by 2। सो अब हमारे पास ये चार वैल्यूज हैं और दो एक तरीके से हमारे पास मतलब हमारे पास मैट्रिक्स जो है ना वो बड़ा बन गया है एक तरीके से। हमारे पास सारी वैल्यूज इस एक ग्रैंड लिस्ट के अंदर आ गई है हमारे पास। ये हमारे पास इनपुट आ गई है। इफ आई एम समवेयर रॉन्ग इन स्पीड स्पीड से मैं अक्सर बात गलती कर जाऊँ, सो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो बायसेस हमारे पास, हमने यहाँ पे हमारे पास तीन बायसेस थे, हमने उसकी भी लिस्ट बना ली है। 2.0 और 3.0, 0.5 और तीन वेट्स की भी हमारे पास हमने एक बड़ी लिस्ट तैयार कर ली है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो काम हम यहाँ कर रहे थे इतना ख्वारी के साथ, तो हमने उनको एक पहले तो समराइज, तमाम को समराइज कर लिया। समराइज करने के बाद जो हम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये हमें पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप समराइज लिस्ट बनाओ और सिंपल एक numpy का फंक्शन होता है np डॉट डॉट, आप डायरेक्ट वो यूज कर सकते हो। when we going to run this program, it is going to generate an error. Let me see why. Let me see why. List attribute has no as type. Where the hell I have mentioned as type? Let me see. अभी तो चल गया था, क्या मैंने गलत फाइल तो नहीं डाल दी? Let me see here. अभी तो चल रहा था। What just happened here right now? There is pain. Doing dot product. Same thing is happening here as well. What was the difference?
Alright, so we're gonna see it again कि भाई क्या प्रॉब्लम थी. Alright, okay. Taking the problem. We got problem here. Let me just omit all the. इस बहाने हम सबके आउटपुट वो कर देंगे. Okay, alright. It's reloading. Wow. Just wait for a minute. Okay. कहाँ गया भाई कहाँ गया ऊपर. Let me run it again. Wow, I don't know what was actually happening at that time, but now it's working. मैंने आउटपुट को निकाल के दोबारा चल रन किया है. हो सकता है ऊपर कोई ऐसा मैंने काम किया हो जो कि अभी कन्फ्लिक्ट कर रहा हो करंट वैल्यू के साथ. बट नाउ वी आर फाइन राइट नाउ. तो हम कर क्या रहते हैं. सो लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग फॉर 1 सेकंड जो हमने 1 मिनट पहले करा. तो ये वही हो रहा काम. हमने ऊपर जब देखा था कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेट्स थे, तो हमने उनकी पूरी लिस्ट बना ली है तीनों वेट्स की. हमारा हमने उसकी पूरी एक इनपुट लेयर की पूरी लिस्ट ऑलरेडी हमारा बनी हुई थी. हमने 3 बायसेस को एक लिस्ट में बना लिया है एंड देन वी आर हैविंग और आउटपुट. अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एन नमपाई डॉट डॉट. ठीक है, एनपी डॉट डॉट. अच्छा, एक क्वेश्चन आया. H1 को हम H1 हमको H1 की फर्स्ट न्यूरॉन की वैल्यू दे रहा है. यस ब्रदर, हमें फर्स्ट वैल्यू की ही वैल्यू दे रहा है. आई हैव रिप्लाइड टू यस टू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, लेट अस गेट बैक. तो यहाँ पे हमारे पास 3 बायस थे एंड देन वी आर परफॉर्मिंग हियर numpy डॉट डॉट. तो जो काम हम लोग यहाँ पे इतनी सारी उसके साथ कर रहे थे ना, इतना मैस यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे इतना मैस हम यहाँ पे कर रहे हैं इतना सारा. तो अब मैं वो काम हमें इतना मुश्किल तरीके से करना नहीं पड़ा. मैं सिंपली क्या लिख दिया, numpy डॉट डॉट लिख दिया. तो ये बेसिकली डॉट कैलकुलेशन अपने आप कर लेता है. आपको उस पर 2 वेक्टर्स डालने होते हैं, वेट्स एंड इनपुट्स प्लस बायस. ऑल राइट, सो इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म नाउ. हमारे पास ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा और हम ये यूज़ करते हुए पूरा, चाहे हमारे पास 15 न्यूरल लेयर्स हो, हम आराम से ये यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ ये बताने का मकसद क्या था कि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब हमें कोड श्रिंक करना था कि हम उस कोड के ऊपर एडवांस काम कर सकें. ऑल राइट, so this is import numpy as np, and then we are having numpy.random.seed. Now what is numpy.random.seed? अच्छा, all right. हम लोग रैंडम वैल्यूज जनरेट करते हैं. अब हर दफा हम नहीं चाहते कि हर दफा डिफरेंट रैंडम वैल्यूज जनरेट करें, तो हमने यहाँ पे numpy.random.seed 0 लिख दिया. और वैल्यू रैंडमली ही जनरेट करेगा, लेकिन जब जब वो जनरेट करेगा, जब जब वो रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा होगा, वो वही वैल्यू जनरेट करेगा. लाइक अगर उसने रैंडमली 24 जनरेट किया फॉर एन एग्जांपल, तो हम जब जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो 24 वैल्यू उसके पास इंक्रिप्टेड होगी और वही वैल्यू वो जनरेट कर रहा होगा. वो रैंडमली डिफरेंट वैल्यू अब जनरेट नहीं करेगा. सो दिस इज व्हाई वी यूज numpy.random.seed. इसलिए क्या रहा है, अब रैंडमली वैल्यू चूज तो कर लेगा, लेकिन अब जब दोबारा मतलब ईपॉक चल रहा होगा, दोबारा मतलब बैक प्रोपगेशन का एक रूल था ना, दोबारा ईपॉक चल रहा है, तो हमारी रैंडम वैल्यू दूसरी आ जाएगी. तुम्हारा मॉडल तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएगा. तो हम चाहते ही नहीं है कि हमारी इनपुट लेयर का कोई जो डाटा हो वो लूज हो. दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन numpy.random.seed. तो हम आगे जाकर जब भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेंगे तो वो सेम ही वैल्यूज जनरेट होंगी. ऑलराइट, सो हियर वी आर हैविंग क्लास लेयर अंडरस्कोर डेंस. उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी कुछ इनपुट वैल्यूज हैं बड़ी खतरनाक किस्म की. 1 2 3 2.5 1 5.0 -1.0 2.0. तो ये हमारी कुछ इनपुट वैल्यूज हैं. ऑलराइट, अब इन इनपुट वैल्यूज के अंदर हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना. इसको भी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देना है. हम देखेंगे नीचे नीचे हम क्या करते हैं. क्लास ये हमारा अभी ना इस पूरे इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है ना कोड, वो यही है. इसको बड़ा गौर समझिएगा. हमने बनाई है लेयर डेंस. हम क्लास पे यूज करते हैं लेयर डेंस. अब उसके अंदर की कोडिंग का थोड़ा मुजाहिरा करते हैं. दैट इट वोंट बी द एक्यूरेट कोडिंग, बट वी गोना जस्ट सी द क्लोज बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ class.lens
layers dot dance, इस तरह कुछ जो नाम था. Here you are having two function def init and def forward. ठीक है, तो ये हम def basically is used for defining a function, and हमने यहाँ पे input it is which is representing its own class and then n inputs and n neurons. ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो मेथड है ये इसका बेसिकली एक ये def फंक्शन है, ये इस क्लास का मेथड बन चुका है. So we can call it as its we can make object of this class and we can call this method on any suitable object. तो अब इस मेथड पे क्या हो रहा है, इस init नाम के मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ये n इनपुट्स ले रहा है, हमने मतलब पास किया कि हमारे इनपुट कितने हैं और n न्यूरॉन्स कितने हैं. ये क्या कर रहा होता है init के नाम से, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर. अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कुछ आइडिया हो तो आपको मालूम होगा कि इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज एन एब्सोल्यूट ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास. क्लास एक खुद एक ब्लूप्रिंट होती है बट कंस्ट्रक्टर इज द सेम. अब यहाँ पे हम सोच रहे होंगे कि यार इस कंस्ट्रक्टर की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है जो अगर पाइथन में एडवांस में नहीं पढ़ सके, एंड दे हैव वर्क ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस, so they may have seen that constructor have the same name which you are having for the class, but in this Python we are not having the same scenario. We just simply write double underscore init and double underscore, and this is representing the same thing. अब जब जब हम layer dense call करेंगे, so it gonna call this constructor. अब इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कॉल किया, हमने करा भाई सेल्फ डॉट वेट्स. नाउ व्हाट इज सेल्फ? ये सेल्फ क्या चल रहा है यहाँ पे, ये सेल्फ इज बेसिकली विल गोना बी द ऑब्जेक्ट. ये क्लास हम कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा होगा. तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कभी भी कोई भी मेथड अप्लाई कॉल कर सकते हैं, लाइक वी आर कॉलिंग फॉरवर्ड मेथड जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. तो ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा ना, वो इस सेल्फ की मदद से चल रहा है, इस सेल्फ कीवर्ड की मदद से चल रहा है. नाउ वी हैव मेंशन्ड सेल्फ डॉट वेट्स एंड सेल्फ डॉट बायस. अब क्या कर रहे हैं हम इस ऑब्जेक्ट पे या इस लेयर के ऊपर एक कुछ पर्टिकुलर वेट्स और पर्टिकुलर बायस अप्लाई कर रहे हैं. किस तरह कर रहे हैं कि हम रैंडमली वैल्यू चूज कर रहे हैं, एंड numpy dot random dot random numbers. As far as I know this is used for float and rand n. ठीक है, numpy dot random और यहाँ पे rand n आ गया. Here we are passing number of inputs and number of न्यूरॉन्स, जो कि अभी आगे जाके हम देखेंगे क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे, कि कहानी क्या है बेसिकली. तो इधर हम देखते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.10 से, जो कि इसका एक्चुअल यू कैन से 10% कह रहे हैं. यहाँ पे हम एक तरीके से वेट्स एडजस्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि जो रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है वो एक सूटेबल मैनर में हमारे पास आ जाए. ठीक है, आपकी मर्जी, आप उसको ना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज आवर सेल्फ बेस फंक्शन. हम कुछ भी मल्टीप्लाई करा के अगर वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना पड़े हम कर सकते हैं. एंड देन वी आर जस्ट व्हाट वी आर गोना डू, वी गोना क्रिएट अ सेल्फ बायस is equal to numpy dot zeros 1 comma number of neurons. तो यहाँ पे हमारे पास randomly bias generate हो जाएगा. Then now what we gonna have here, हम हमारे पास यहाँ पे weight भी generate हो रहे हैं इस फंक्शन से, हमारा bias generate हो रहा है. कैसे हो रहा है? जैसे हम layer dense class कॉल करेंगे, ये init फंक्शन जो होगा उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर weights और bias असाइन कर देगा. देन विथ फॉरवर्ड, ये बेसिकली फॉरवर्ड फीड फंक्शन है. ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फंक्शन है, ये ही फ्रेमवर्क में भी यूज हो रहा होता है यही फंक्शन. तो ये डॉट फॉरवर्ड का जो मेथड है क्या कर रहा है, ये सेल्फ को इग्नोर कर, सेल्फ इज जस्ट फॉर कॉलिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, एंड दिस इज इनपुट्स. ये इसको हमें वैसे कॉल नहीं करना पड़ता, ये दिस इज अ इनबिल्ट पैरामीटर हियर, एंड देन वी आर हैविंग इनपुट्स. यहाँ पे हम दे रहे होंगे x, जो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं. ठीक हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ जो भी इनपुट्स होंगे वो हम यहाँ पे दे रहे होंगे इधर फॉरवर्ड के अंदर, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स भी नहीं, सारे के सारे इनपुट दे रहे होंगे, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे हम सारे इनपुट दे रहे होंगे, एंड देन इन दिस मेथड व्हाट वी गोना हैव, सेल्फ डॉट आउटपुट इज इक्वल टू numpy डॉट डॉट इनपुट्स कॉमा सेल्फ डॉट वेट्स. जो काम हमने ऊपर किया था वही काम हम यहाँ कर रहे हैं. अब हम वेट्स को इनपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने इनपुट पास किया, वेट इसे खुद जनरेट करा बॉडी पे. ठीक है, इसी की बॉडी का बायस जनरेट करते हुए यहाँ पे हमारे पास नंबर डॉट डॉट बन के हमारे पास उसका आउटपुट रिजल्ट जनरेट हो रहा होगा. तो ये थी हमारी प्रॉपर एक लेयर जो हमने यहाँ पे बनाना मुनासिब समझी. अब हम कराते हैं इसको कॉल.
हमने लेयर 1 पे भी कॉल कराई है, लेयर डेंस 2 पे भी कॉल कराई है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ पे 2 है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ, इसको अगर हम रन करें, हाँ राइट, तो इसको अगर हम रन करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जो है वो हमें बता रहा है, 5 जो है हमें बता रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं, ठीक है। और 2 जो है हमें बता रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं। 4 जो हमें बता रहा है और जो 5 जो हमें बता रहा है वो हमें जस्ट नंबर ऑफ इनपुट्स दे रहा है कि भाई नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं हमारे पास। अब इनपुट की शेप हमारे पास कोई भी हो सकती है, हमने यहाँ पे सेल्फ अज्यूम करके डाल दी है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स इतने आ रहे हैं। देन व्हाट वी हैव डू हियर, हमने लेयर जनरेट करने के बाद वी हैव डन हियर लेयर 1 डॉट फॉरवर्ड एक्स। अब यहाँ पे हमने सिंपली लेयर जनरेट की है, कुछ परफॉर्म नहीं करा। परफॉर्म यहाँ हो रहा होगा जब हमारे पास इनपुट जाएगा। अब हमारे पास इनपुट चाहे 10 न्यूरॉन से आए, 4 न्यूरॉन से आए, लेकिन जब हमारे पास इसमें 5 न्यूरॉन थी तो रिजल्ट हमारे पास 5 न्यूरॉन्स का ही आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। तो हमारे पास 5 न्यूरॉन का आउटपुट जनरेट हो गया है और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया लेयर 1 डॉट आउटपुट। सो लेयर 1 डॉट आउटपुट कैसे प्रिंट हुआ? यहाँ पे हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट आउटपुट बनाया था। तो ये सेल्फ क्या होता है? सेल्फ मतलब जो हमारी क्लास है, जब भी हम उस पर डॉट आउटपुट का एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, so we can so it is basically having the values of the output it have computed so far in all layers। तो हमारे पास उसका आउटपुट रिजल्ट आ गया एक of particular layer 1। then what we gonna do, we gonna layer 2 we gonna do layer 2 dot forward। तो अब लेयर 1 से जो हमारे पास रिजल्ट आए वो हमारे पास जाएंगे लेयर 2 के अंदर और हमारे पास उसका एक आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। अब हमारे पास भले से पीछे 5 न्यूरॉन्स थे, अगर अगर आगे हमने 2 न्यूरॉन्स लगाए तो हमारे पास 2 ही न्यूरॉन्स के रिजल्ट जनरेट हो रहे होंगे। अब नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास जितने थे हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ इनपुट्स की शेप बनती आई, लाइक 1 2 3 1 2 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट, तो ये एरे चल रहा था तो हमारे पास इनपुट की शेप वही रही है। ऑलराइट, सो यहाँ तक आई होप कि सबको सब समझ में आ गया हो। अदरवाइज रुक जाएंगे, थोड़ा सीख लेंगे क्या हमने करा क्या नहीं करा। देन वी गोना डू सम मोर कोड, ये लास्ट कोड होगा उसके बाद हमारा। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया सो यू कैन आस्क मी, आई एम गिविंग अ ह्यूज फेवर। ऑलराइट, सो समवन इज सेइंग दैट आवाज स्लो हो गई है। सो ऑलराइट, लेट मी सी माय माइक। आई होप नाउ इट्स वर्किंग फाइन। Okay, why number of input is not same as number of neurons? All right, question नहीं आया समझ में, क्या नहीं समझ में आया? Please be more specific. Sir, please show second neuron working with numpy dot in similar manner you have explained for neuron 1. Okay. All right. देखो, ये numpy dot dots है ना, ये तमाम न्यूरॉन्स की कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है एक साथ। मैंने ऊपर दिखाया था हम लोग सारी चीजें जो अलग से कर रहे थे, ये चीजें इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये जो हमने सबके हर न्यूरॉन के लिए कैलकुलेशन या परफॉर्म करके एक साथ ही उसको आउटपुट जनरेट कर दिया था। बट राइट नाउ वी नॉट गोना यूज दिस मल्टीपल कैलकुलेशंस, बट वी गोना यूज सिंपली द नंपाई डॉट डॉट। तो इसमें एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन की कहानी रही नहीं हमारे पास, सब चीज़ों की कहानी लगी। अब आप कह रहे हो कि अगर आप पर्टिकुलरली न्यूरॉन की बात कर रहे हो कि हमें सेकंड न्यूरॉन का भी कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो आप खुद कर सकते हो। तो ये तो हम सारी एज्यूम्ड वैल्यूज के ऊपर चल रहा है, ठीक है, हम कोई रियल वैल्यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब किस तरीके से वो होता है, मैं सोच रहा हूँ इसका ट्यूटोरियल बना के वो डाल दूँ अलग से यूट्यूब पे ना, बैक प्रोपगेशन का पेंसिल से लेके डिजिटल पेन से लेके मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता दूंगा ऑन बैक प्रोपगेशन दैट हाउ दीज आर वर्किंग। यहाँ पे एक ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगा दैट कितना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है ये। ऑलराइट, सो हियर वी आर हैविंग दिस numpy dot dot for the same thing। उसने सारे ह्यूज नंबर ऑफ कोड को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ऑलराइट, why number of input is not same as number of neuron? Okay, भाई नंबर ऑफ इनपुट जरूरी थोड़ी है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन से शेयर होना चाहिए। समझे नहीं आप? मैं आपकी बात समझा। देखो यहाँ पे हिडन लेयर 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट लेयर 4 है, तो इनपुट लेयर में 4 न्यूरॉन है। जरूरी थोड़ी है कि जितने हमारे पास हिडन लेयर हो उतने ही हमारे पास
जितने हमारे न्यूरॉन हेडर लेयर के अंदर होते हैं हमारे पास इनपुट लेयर में भी हो, अब यहाँ पे देखो ज़्यादा हो गए और आउटपुट में सिर्फ 3 हमारे पास, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप की डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, आपके डाटा के फिट कौन सा हो रहा है। ये चीज़ मुझे तकरीबन 6 महीने लग गए थे न्यूरल नेटवर्क को समझने के अंदर, सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू टू लर्न दिस इन 6 days। तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, खैर मैंने 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, लेकिन न्यूरल नेटवर्क बनाते बनाते टाइम लगता है, उसके अंदर कमांड हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। दैट इज़ वाई AI इंजीनियर्स हैव अ वेरी हाई सैलरी रेट। तो यही वजह होती है और कोई वजह नहीं होती। और वो सारा खेल मैथ्स का है, सारा का सारा। हाँ, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास इनपुट था जिसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट थे और 3 इनपुट के अंदर डिफरेंट शेप्स के इनपुट थे। अब ये हो क्या रहा है, अब ये ना आप लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे मैंने करा क्या है। लेट मी जस्ट मेक इट इजी फॉर यू, तो मैं मेरे लिए भी समझाने में ना आसानी होगी। जस्ट वेट अ सेकेंड, ट्राइंग टू मेक इट इजी एज फार आई कैन। ठीक है, अब हमारे पास 3 शेप की वैल्यूज है। ठीक है, हमारे पास इनपुट लेयर क्या है, हमारे पास इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं, 4 न्यूरॉन्स है। अगर कोई कहता है कि नहीं यार सर आप गलत बता रहे हो, 3 न्यूरॉन्स है, तो वो गलत है। हाउ, बिकॉज ये एक न्यूरॉन काउंट नहीं होता, न्यूरॉन काउंट होता है कि हर उसमें कितने एलिमेंट्स हमारे पास। ठीक है, हमारे पास शेप 3 है। अब शेप 3 के होने से क्या मतलब होगा कि हमारे पास डाटा जो है उसकी शेप 3 है। आपको अगर याद हो, अगर हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे तो उन 3 कॉलम को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर रहे होंगे। मैं चाहता तो यहाँ पे सिंपली एक हटा भी सकता था, लेकिन बट मुझे अच्छा ही लग रहा, मैंने कहा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेके चलो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 4 इनपुट आ रहे हैं, हमारे पास एक्स में 4 इनपुट हैं। तो ये 4 इनपुट, जब हमारे पास इनपुट लेयर में 4 न्यूरॉन्स होंगे तो ये रिजल्टेंट भी 4 के अंदर ही निकालेंगे। जब 4 के अंदर निकालेंगे तो लेयर 1 के अंदर जो इनपुट नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और मैंने बोला कि आप हिडन लेयर बनाओ 5 की, 4 का इनपुट ले रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है, 5 का दे रहा है। फिर यहाँ पे हमने सेकंड लेयर बनाई जो कि 5 का इनपुट ले रहा है। कैसे, जब मैंने बनाई 5 का इनपुट है तो जाहिर सी बात है ना 5 ही लेगा। एंड देन आई एम डूइंग कि भाई मैं 2 न्यूरॉन्स पे डाटा आउटपुट कर रहा हूँ। नाउ किस तरह होना है, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ एक दफ़ा, कि हमने यहाँ पे इसके अपने वेट ज्यूम करे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय जनरेटिंग रैंडम वैल्यूज। हमें इसको नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पता है, तो उसके हिसाब से ये रैंडम वैल्यूज और रैंडम न्यूरॉन्स को देखते हुए वैल्यूज जनरेट कर रहा है। एंड देन वी आर जनरेटिंग बायस एज वेल। ठीक है, हमारे पास मैं खुद की समझा रहा हूँ अब। ठीक है, हमारे पास वेट भी आ गया, बायस भी आ गया। एंड देन ये हमारा कंस्ट्रक्टर था, जब जब हम लेयर डेंस को कॉल करेंगे विद पैरेंथेसिस, तो ये बेसिकली हमारे पास ये init नाम के नाम से जो मेथड बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास कॉल हो जाएगा। देन हमारे पास हमें जब जब हम कॉल करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो मेथड, अब हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया लेयर 1 बाय कॉलिंग इट्स कंस्ट्रक्टर, एंड देन वी आर यूजिंग डॉट फॉरवर्ड मेथड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो हमने इसे पूरा का पूरा इनपुट दे दिया। अब जब हमने इस पे इनपुट दे दिया लेयर 1, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता रखा है कि इसके पास 4 इनपुट आएंगे और 5 आउटपुट करने हैं। तो ये हमारे पास इस एक्स के अंदर से 4 इनपुट ही आ रहे हैं और 5 आउटपुट ही करेगा। फिर हमारे पास लेयर 2 के अंदर हमने बता दिया कि भाई इसका 5 इनपुट आएंगे और 2 आउटपुट करने हैं। अब कैसे इसके पास 5 इनपुट आ रहा है, जब लेयर 1 के पास हम देखेंगे कि लेयर 1 का आउटपुट क्या है हमारे पास, देख सकते हो 5 इसमें हमारे पास आउटपुट आ रहा है। और हम बेसिकली लेयर 2 में अब क्या डालेंगे, लेयर 1 का आउटपुट डालेंगे। तो अब लेयर 2 क्या करेगा, लेयर 2 बेसिकली सारी वैल्यूज जो होंगी 2 में रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम एक न्यूरॉन के लिए काम कर रहे थे, यहाँ पे हम तमाम न्यूरॉन्स के लिए काम कर रहे हैं। ये जितने भी डाटा आ रहा है ये हर न्यूरॉन अपनी 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 वैल्यू जनरेट कर रहा है। बिकॉज हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बना दिया और अब वो फंक्शन जो है हम पूरे पूरे इस शेप पे लगा रहे हैं, और वो पूरी की पूरी शेप जो है, पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट निकाल के हर न्यूरॉन का रिजल्ट जनरेट कर रहा है। दिस इज हाउ वी आर डूइंग फॉर एंटायर न्यूरॉन्स इन अ लेयर। आई होप के नाउ इट्स प्रीटी क्लियर फॉर ऑल यू गाइस। गाइस समझ में आ गया? ऑलराइट, ये इनपुट वेट है, वेट अलग है, इनपुट अलग है।
अच्छा, ओके। np डॉट जीरोस क्या है बेसिकली ब्रदर? np डॉट जीरोस इज टू क्रिएट अ मैट्रिक्स फुल ऑफ जीरोस। उसपे सब जीरोस होते हैं। बेसिकली इट यूज्ड व्हेन यू इनिशियलाइज द वेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आइटरेशन इन टेंसरफ्लो। ठीक है ना, ये फर्स्ट आइटरेशन में बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट आइटरेशन ना यूजुअली बेस बायस मैंने देखा है, मैंने पढ़ा था, तो ये नेट के ऊपर आप भी पढ़ सकते हो कि जीरो टेंसरफ्लो जीरो इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बायस चेंज करता है। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन numpy डॉट जीरोस हियर। कहाँ गया ये रहा? ऑलराइट, तो ये आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, मेरी वीडियो को दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियो को स्लो डाउन कर लिएगा या फास्ट स्केल कर लिएगा, हर तरह से समझ में आ सकता है। ऑलराइट, so here we are having this scenario. We have already understand the layer 1 and layer 2 intuition here, किस तरीके से layers काम कर रही हैं। अगर मैं ये ना भी कराऊँ तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा, बट here what I am doing, मैं एक activation function different apply कर रहा हूँ, और किस तरीके से कर रहा हूँ we're gonna see here, that going to be very interesting one. सो फर्स्ट इंस्टॉल दिस, ये ऐसा आया ना, ये तो आपके पास आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड तो है नहीं। अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, आप लोकल डाटा जनरेट कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे पास, ये एक डाटा सेट है, ये स्पाइरल डाटा ही जनरेट करेगा। अगर आपको उसका कोड देखना हो तो यहाँ पे जाइएगा और कोड चेक कर सकते हो। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से उठा के लिख दो। ठीक है, तो ये बेसिकली डाटा जनरेट कर रहा होता है हमारे पास। ऑल राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डॉट इनट कॉल किया, तो बेसिकली हम यहाँ पे सब कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू स्पाइरल डेटा 100,3। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने उसमें से स्पाइरल डेटा इंपोर्ट करा दिए, 100,3 लिख दिए। तो ये बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आपको समझना हो तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पे देखोगे भाई क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट क्लास होंगी हमारे पास, और 100 डेटा वैल्यूज होंगी। पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज एंड क्लासेस रिप्रेजेंटिंग डेटा पॉइंट्स। अभी किस हिसाब से वैल्यूज जनरेट हुई हैं ये बाद में आप लोग खुद से देखते रहिएगा। वी आर जस्ट इंपोर्टिंग दिस, हमें पता है कि भाई डेटा जो होगा स्पाइरल फॉर्म के अंदर होगा, 100 वैल्यूज होंगी और 3 डिफरेंट क्लासेस होंगी। नाउ वी आर यूजिंग दैट सेम फंक्शन वी हैव यूज्ड अबव, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है ना, मैं पूरा पूरा कोड एक साथ रन करूँ, दैट इज व्हाई आई हैव कॉपीड दैट। तुम्हारे पास वो डेंस लेयर आ गई है, वही क्लास हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ आई है वो है एक्टिवेशन रेलू डेफ फॉरवर्ड सेल्फ कॉमा इनपुट्स। इसका मैं नेट पे खुद देखा कि रेलू को की कोडिंग क्या है, तो उसकी कोडिंग यही आ रही थी मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक्टिवेशन रेलू की मेरे पास कोडिंग यही आ रही थी, तो मैंने सिंपली फिर यही कोडिंग डाल दी। मैंने कहा चलो भाई, अगर यही कोडिंग है तो यही कोडिंग डाल देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा आपको भी यही कोडिंग मिलेगी। एक्टिवेशन फंक्शन में सिर्फ यही कोडिंग है, यही इसका फॉर्मूला है। इसमें जीरो कोमा इनपुट्स हमारे पास आ रहा है। तो बेसिकली अभी हमारे पास फॉरवर्ड इसका था, अब हमारे पास फॉरवर्ड इसका भी आ गया है, जो कि एक नई क्लास हमारे पास एक्टिवेशन रेलू, मतलब रेलू फंक्शन। तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम जो काम ऊपर कर रहे थे वही कर रहे थे, बस हम यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा देंगे। बस सिंपली डिफाइनिंग लेयर 1 इज इक्वल टू लेयर डेंस। अब यहाँ पे हम जो है इनपुट वो 2 ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जाके 5 रिटर्न करो। 2 इनपुट ले रहे हैं और क्या कितना आउटपुट दे रहे हैं, 5 का आउटपुट दे रहे हैं। ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। अब हमने 5 का आउटपुट दिया, अब अपने यहाँ पे लगा दिया एक्टिवेशन 1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन रेलू। अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एक्टिवेशन के नाम से, जो भी डेटा होगा वो उसके अंदर आ रहा होगा, और उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन भी डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा। तो लेयर 1 डॉट फॉरवर्ड, अच्छा ये एक्टिवेशन फंक्शन इस मद्देनजर को देखते हुए अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास आउटपुट के अंदर ऑलरेडी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है ना, दैट इज बाय इसका इतना सिंपल है, नहीं तो ये थोड़ा डिफरेंट होता। तो एक्टिवेशन वैल्यू हमने कॉल बना दिया उसका ऑब्जेक्ट, और हमने फॉरवर्ड करा के हमने वही लेयर 1 परफॉर्म कर दी। हमारे पास एक्स का इनपुट गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्स को प्रिंट करके देख सकते हो कि हमारे पास एक्स किस तरीके का है और वाई किस तरीके का है। दिखा देना अच्छा होगा। ये अच्छा होगा कि हम देख लें कि एक्स किस तरीके का है और वाई किस तरीके का है। वेट जस्ट फॉर अ मिनट एंड देन वी आर हैविंग दिस। Let's just run this again. I hope there will be no error. Oh my god, so many values.
ठीक है, ये हमारे पास एक्स था, इसमें हमारे पास दो इन शेप्स थी। अब आप देखो हमारे पास दो इनपुट लेने में हमारे पास दो न्यूरॉन्स हैं। ये क्यों दिखाया है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों दिखाया है। ये पूरी 100 डोज होंगी क्योंकि हमने 100 वैल्यूज जनरेट करी हैं, बट नो वरीज। एंड सेम फिर वाई, कुछ जीरो है, कुछ वाई वन है, कुछ टू है, क्योंकि हमारे पास तीन क्लासेस थी। मैंने कहा था, तो तीन क्लास का मतलब क्या होगा कि हमारे पास तीन तरह की प्रिडिक्शंस होंगी। अभी क्लासिफिकेशन कह रहे हैं आप, जो भी कहना है आपकी मर्जी है। तो हमारे पास ये तीन वाई वैल्यूज थी और ये तीन और ये बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं इधर। और राइट, तो हमारे पास जब इनपुट लेयर में दो थी ना, तो मतलब इनपुट लेयर में अगर दो, इनपुट लेयर दो ही रिटर्न कर रहा है वैल्यूज, हम कहें दो न्यूरॉन से हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो फर्स्ट हिडन लेयर जो हमारे पास यहाँ पर बन रही है, तो उस तक दो ही इनपुट आएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई, इनपुट लेयर हिडन लेयर के पास दो न्यूरॉन से इनपुट आ रहा है, वो 5 न्यूरॉन्स में आगे जाके ट्रांसफॉर्म करे, उसी इनपुट को 5 न्यूरॉन्स में ट्रांसफॉर्म करें। यहाँ पे हमने आउटपुट में 5 डाला है। And then we are performing this here by using this layer one dot forward। हम यहाँ पे इसका आउटपुट भी देख लेंगे। और फिर हमने क्या किया, हमने लेयर टू के नाम से लेयर टू नहीं बनाई है, हमने एक्टिवेशन वैल्यू के नाम से लेयर सेकंड लेयर बनाई है, जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किए। एंड वी जस्ट इनपुट द लेयर वन डॉट आउटपुट, उसमें हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिए। बेसिकली देखा जाए तो ये एक लेयर नहीं है, इसको आप लेयर नहीं कहोगे, इसको आप कहोगे लेयर विद अप्लाइड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, अब हमने उसी इस पे डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो अब उस लेयर के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम इस रिजल्ट को देखें, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, कमिंग डाउन, एंड ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ गई। हमारे पास ये लेयर थी, ठीक है, हमारे पास पहले दो वैल्यूज आ रही थी, अब उसने हमें जब रिटर्न की तो 5 वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, मतलब 5 न्यूरॉन से वैल्यूज आ रही हैं। ये सब पूरे जीरो ही है, उस पर चेंज हुई हैं, तो इट्स द इंटायर लेयर वन। यू कैन सी हियर, अभी जो लेयर टू थी हमने उसको चेंज कर दिया था, बट स्टिल गिविंग द सेम। इसके तमाम वैल्यूज के ऊपर अब इसने ReLU फंक्शन अप्लाई कर दिया। सो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज चेंज इन द डाटा, एंड वी कैन क्लियरली सी द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मलाइजेशन इन इस एक्टिवेशन फंक्शन वी हैव सीन सो फार। सो आई होप कि ये हमारी इंटायर वर्कशॉप थी, एंड आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, so now it's a Q&A time, you can ask me right away. Any question, guys? How 2 is returning 5? देखें यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल, if you are getting weird by my cough right now, so sorry for that. All right, so for example हमारे पास यहाँ पे 4 input layer है। अब now you can see why these 4 input layers are returning 5 hidden layers। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एक न्यूरॉन ये तमाम hidden layer के घर जाएगा, ठीक है, ये एक ही न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूरॉन है, तो ये हमारे पास हर हिडन लेयर के घर पे जा रहा होगा, पांचों के पांच। फिर दूसरा वाला भी सबके घर जाएगा, फिर तीसरा वाला भी सबके घर जाएगा, चौथा वाला भी सबके घर जाएगा। बस क्या है कि चार बंदे हैं और चारों को पांचों के घर जा रहा है, ठीक है। अब चाहे एक होता है, दो होता है, लेकिन हमारे पास हिडन लेयर 5 हो सकती हैं। अब हमारे पास हिडन लेयर में 5 घर हैं, हमारे पास उसमें 5 बंदे हैं डिफरेंट, ठीक है ना। चार बंदों ने अपने अपने पार्सल पहुंचा दिए डिफरेंट वेट कैरी करके। अभी 5 बंदों ने आके जाके वही सेम पार्सल जो है हिडन लेयर 2 में पहुंचाना है। आप हिडन लेयर 2 में हमारे पास कितने घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो वी आर हैविंग 7 होम्स हियर, लाइक 7 न्यूरॉन्स हियर। तब यही 5 वैल्यूज जो होंगी अब जाकर 7 में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, एंड दीज 7 वैल्यूज कैन देन कंप्रोमाइज ऑन 3 वैल्यूज एज वेल। कि ये एक न्यूरॉन होगा, वो तब 3 घरों में चला जाएगा, यहाँ से भी 3 घरों में, ऐसे भी 3 घरों में, ऐसे भी 3 घरों में। So that is how we can increase and decrease our neurons in a particular layer. So I hope this is pretty understandable for you guys. Let me know if there is any problem. Okay, okay. What are the parameters that tell us to switch from machine learning to neural network? Kindly answer this. देखिए, मशीन लर्निंग इज अ स्लो लर्निंग थिंग, ठीक है। जब हमारे पास डाटा बहुत कम होता है ना, लाइक 100 सैंपल, 200 सैंपल, 300 सैंपल, 1000 सैंपल, 2000 सैंपल, न्यूमेरिकल डाटा की बात कर रहा हूँ, तब मशीन लर्निंग इट्स प्रीटी गुड। बट लेकिन जब हमें स्टेट ऑफ द आर्ट हमें काम करना है और डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा तवील है, बहुत डिफरेंट सारे में डाटा है, तो हम वहाँ पे मशीन लर्निंग अप्लाई नहीं करते, फिर हम वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करते हैं। बिकॉज न्यूरल नेटवर्क इज लाइक एन एरे प्रोग्रामिंग। अब एरे प्रोग्रामिंग इज लाइक एन एरे प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि दैट इट्स दीज आर बेसिक टेंसर बेस्ड प्रोग्रामिंग,
And tensors are basically the objects क्या है which can be represented as array. Tensor की बहुत आसान definition है that tensors can be represented as array, but those are different kind of object which is being made in neural networks. वो बहुत लंबी कहानी है anyways. That is, and tensors require very high amount of GPUs क्योंकि इनको कोर्स की नीड होती है, नंबर ऑफ कोर्स चाहिए होते हैं इनको. हमारे सीपीयू का आजकल नॉर्मल काउंट चल रहा है 4 and 6. 8 बहुत ज़्यादा हाई एंड पीसीस में मिलता है, इतना ज़्यादा हमारे पीसीस में नहीं गया है. 4 एक नॉर्मली अवेलेबल है, 2 किसी के पास 2 भी कोर्स होते हैं. So in that scenario, neural networks struggle a lot. That is why we are having GPUs which can have more than hundreds and thousands of cores. अगर आप एक सिंपल एक बात करें कि गूगल के पास जो जीपीयू है वो है एनवीडिया के K100 टेस्ला. तो जो जिस पे हम कोयला पे काम करते हैं ना वो तो ये है जो उनके डेटा सेंटर में लगा हुआ है. आई डोंट हाईली रिमेंबर दैट इज दैट P100 और V100. तो अगर आप यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू द नंबर ऑफ कोर्स वी हैव. तब तक हम चीज़ें भी शेयर कर लेंगे. They have not mentioned the number of cores here. All right, so I'm gonna still share this thing कि कितना फर्क होता है एक जीपीयू और सीपीयू के अंदर, एंड दैट इज व्हाई वी यूज न्यूरल नेटवर्क. क्योंकि मशीन लर्निंग में जीपीयू को वो नहीं कंज्यूम नहीं कर सकती, लेकिन न्यूरल नेटवर्क जो होता है जीपीयू को कंज्यूम कर सकता है. मशीन लर्निंग विल ऑलवेज गोना कंज्यूम योर सीपीयू. हम सिंपल देखते हैं भाई, एनवीडिया RTX 3090. अब गेमिंग लेवल, अब एनवीडिया के लोग बोलते हैं कि जीपीयू बहुत एक्सपेंसिव है. दैट इज नॉट बिकॉज AMD ज़्यादा एक्सपेंसिव की रीज़न होने की वजह यही होती है बिकॉज एनवीडिया जस्ट नॉट प्रोवाइड ऑन गेमिंग. एनवीडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स यू दी परफॉर्मेंस फॉर डीप लर्निंग एंड 3D रेंडरिंग. ठीक है ना, तो सब ये चीज़ें नहीं होती. अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट थर्ड. अब टेंसर कोर्स, या ये नजर आ रहा है टेंसर कोर, थर्ड जनरेशन टेंसर कोर. तो भाई जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना वो गेमिंग के लिए लेते हैं, जो आला बंदे होते हैं ना हम जैसे बंदे जो होते हैं तो वो बेसिकली डीप लर्निंग के लिए लेते हैं. ये देख रहे हो कि टेंसर से कितना फर्क पड़ता है कि डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग से हमारा कितना आप अपने एफपीएस इंक्रीज कर देगा वो. अब यहाँ पे अगर आप टेक्निकल स्पेक्स पे जाओ, यहाँ पे फुल स्पेक्स देखते हैं तो मैं आपको यहाँ जरा दिखाता हूँ कि कितने कोर्स हैं. ओ माय गॉड, 10,496 कोर्स. ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि इसमें इतने कोर्स हैं. सो यू कैन सी कितने कोर्स हैं यहाँ पे. हमारे पास गीगाहर्ट्ज 1.70 है, लेकिन कोर्स बहुत सारे हैं. हमारे पास सीपीयू पे गीगाहर्ट्ज ज्यादा होता है लेकिन कोर्स बहुत कम होते हैं. अब फर्क क्या हो गया, देखो हमारे पास इसके अंदर ना टेंसर्स के अंदर होती शॉर्ट कैलकुलेशंस. CPU can handle long calculation pretty easily, but cannot handle short calculations so quickly. GPU is designed to carry short calculations pretty quickly. उसमें short calculations आती है लेकिन at a time बहुत सारे calculation perform कर सकता है. And this is why for what we are having neural network. अब ये mathematics सारी GPU में perform हो रही होती है. अगर आप CPU में करेंगे तो your CPU cannot dead sometime. तो ये भाई सारा सिनेरियो है, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड करता है. अब आप फेशियल रिकॉग्निशन के ऊपर बात कर रहे हो जाओ, तो वहाँ पे तो आप मशीन लर्निंग पर इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, वहाँ पे आपको डीप लर्निंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी. अब कोई बंदा बोले मुझे कि ओपन सीवी करके कर लो, तो भाई ओपन सीवी के पीछे भी डीप लर्निंग चल रही है. और जब आप स्टेट ऑफ द आर्ट काम करोगे, आप सेल्फ ड्राइविंग पे काम करोगे एंड यू गोना डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो देन यू गोना लर्न न्यूरल नेटवर्क टू परफॉर्म कंप्यूटर विजन. फिर कंप्यूटर विजन इज यूजुअली बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क व्हिच इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड ट्रांसफर लर्निंग. ट्रांसफर लर्निंग के एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट है, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को बाद में डीप लर्निंग के प्रोग्राम के अंदर. एंड सो दैट इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट थिंग्स हियर. तो दिस इज व्हाई वी आर हैविंग न्यूरल नेटवर्क. देन एनएलपी की अपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, कंज्यूम सो मच जीपीयू एज वेल, एंड देयर वी आर हैविंग मल्टीपल ऑफ टेंसर्स. तो वो काम एक मशीन लर्निंग नहीं कर सकती. मशीन लर्निंग जब सिंपली रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लस्टरिंग ऑन नॉर्मल अमाउंट ऑफ डेटा आराम से कर लेती है, बट कैन नॉट easily perform state of the art things on the large amount of data set. तो भाई सबसे बड़ा पैरामीटर तुम्हारा यही है. I hope that you can understand pretty well what I've said right now. Okay, any question in this regard? I'm gonna wait 2 to 3 minutes more. If you are not having any questions, we're gonna end our class. And I'm gonna test you right now as well. All right.
So I guess we are not having any far question. अब आप जाओ यहाँ पे नेट के ऊपर लिखना न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। ऑलराइट, यहाँ नहीं, यहाँ लिखो, लिखते हैं न्यूरल नेट फ्रॉम स्क्रैच। सो देखो नेट के ऊपर कुछ शायद और एग्जांपल ही मिल जाए। ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, याद ही पढ़ा हुआ है बेसिकली मैंने। इस पे थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। यू कैन आल्सो स्टडी दिस ब्लॉग। ये ब्लॉग मैं इतनी अरसे से देखता आ रहा हूँ, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये 1 डेढ़ साल हो गया, ये तब पुराना ब्लॉग है और ये बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं इसके। देखे ना 4.3 कैप्स है, मैंने आज तक शायद नहीं करा। चलो कर देते हैं। नहीं, साइन मांगेगा मुझसे, नहीं साइन कर दिया तो प्रॉब्लम तो खैर। एनी वेज माई पॉइंट वाज कि आप देखिएगा न्यूरल नेटवर्क को फ्रॉम स्क्रैच से डेवलप कीजिएगा। इतने में ज़रा मैं स्टडी करूंगा कि आपको कल क्या पढ़ाना है। मैं थोड़ा सा सिलेबस मॉडिफाई किया। हम लोग न्यूरल नेटवर्क का बिल्कुल एंड में पहुंचते हैं, लेकिन हम थोड़ा पहले ही आ गए। तो मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ रोज़ कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा होगा जो डीप लर्निंग के लिए आपको रेडी कर दे। सो ऑन डेली बेसिस आई डिसाइड डिफरेंट वर्कशॉप names and doing different workshops. All right, so guys, if you are not having any sort of question, so we're gonna see you tomorrow, inshallah. Until then, Allah Hafiz. Bye bye.